and conservation. This chapter is very important for NEET and CET also, because there are two questions arises from these topics in NEET and CET also. So today I discuss about second lecture, the types of biodiversity. Types of biodiversity. Biodiversity. The types of biodiversity. There are three types of biodiversity. There are three types of biodiversity. Biodiversity. You know that about the three biodiversity. The first is genetic biodiversity. Second is species biodiversity. And third is very important, ecosystem biodiversity. This diversity means that is genetic level biodiversity, a single species. Second, species level diversity. Different types of species include this diversity. There are, according to the Robert May, that is 7 million of species in whole world. But some scientists say about the diversity is 12 mega diversity in the world. And nowadays in India, different types of biodiversity. जस्ट लाइक मैं जो बात करूं ग्रीनलैंड की, मैं बात करूं अल्पाइन की बात करूं या वेटलैंड की बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यू नो दैट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. स्पीसीज लेवल, एट अ स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, आज स्पीसीज लेवल biodiversity. And third is ecosystem level biodiversity. You know that about the ecosystem. Different types of ecosystem in India and whole world. All of you know that about the ecosystem. That's like a small particles, that is know about the atoms. Small particles know that about the atoms. Different types of atoms include each other or consist each other, that is form of the molecules, that is form of the cell, that is form of the life at known as the also organism form of the population, and population form of the community. Different types of population, that is form of the community depend upon the ecosystem. यानी कि community, different types of community form, that is ecosystem. You know that about the ecosystem. Different types of community known as the ecosystem. That is form of the biome, that is known as the next step, that is biosphere. यानी whole earth 75% वाटर, यानी कि ये कह सकते हैं 71% हमारा जो वाटर है, 70% 30% पे लैंड है. अब आप यू नो दैट अबाउट द वेरी वेल, दैट इज 30% आप लैंड की बात करते हो, उस लैंड एरिया की बात करते हैं. लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इस मैरिन्स की, या मैं पानी की बात करूं, वाटर बॉडीज की बात करूं, तो उसमें सी भी है, रिवर्स भी है, लेक भी है, पॉन्ड भी है. दैट इज एवरीथिंग इज द इकोसिस्टम. यू नो दैट अबाउट द ecosystem, that is artificial ecosystem and natural ecosystem. Different types of ecosystem, that is lakes, rivers and marine sea. This is natural system, natural biodiversity, natural ecosystem. And artificial, that is, you know that about the aquarium. You made the aquarium in your house, aquarium in your tables, aquarium in your office. Different types of aquarium, the small and biggest aquarium. You know that about the aquarium, that is artificial ecosystem. You know that about the natural, that is rivers, lakes and sea, marines and all of that is known as the natural ecosystem.
All of you know that about the ecosystem previous chapters you know that about the ecosystem, that is ecosystem chapters also include your CT and NEET also, so you know that very well. But now today I discuss about genetic biodiversity. आगे इसमें चलते एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये कहता हूं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले हमारे देश में, इन अवर कंट्री, अगर मैं हमारे अपने देश में बात करें तो लगभग 50,000 से ज्यादा जातियां हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुकी हैं, जीएमओ के तहत मॉडिफाई हो चुकी है। राइस की, यानी राइस की 50,000 से ज्यादा वैरायटीज आज आपको देखने को मिलेगी जो जेनेटिकली बायोडायवर्सिटी के लिए डिपेंड है। और साथ में अगर मैं बात करूं यहां पर मैं मैंगो की बात करूं तो 1000 से ज्यादा मैंगो की स्ट्रेन्स यानी स्पीसीज स्ट्रेन्स आज आपकी डेट में मौजूद है। तो यहां पर मैं बात करता हूं 50,000 जेनेटिकली बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है किसमें, राइस में। एंड वहीं पर 1000 से ज्यादा स्ट्रेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं मैंगो में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर तो एक बहुत बड़ा आपने नाम सुना होगा, बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दैट इज रोल्फिया सर्पेंटाइना, that is Rolfia, you know that about the Rolfia. Or second, that is Olfia, the smallest flower in the world and the biggest flower in the world, that is Rolfia serpentina से एक केमिकल एराइज होता है, दिस इज नोन एज द रेजर पाइन। और रेजर पाइन का काम है ब्लड प्रेशर को कम करना, यानी ब्लड प्रेशर को कम करना, ब्लड प्रेशर पेशेंट को देना। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि दैट इज अगर मैं बात करूं यहां पर रोल्फिया की, रोल्फिया सर्पेंटाइना, किसकी बात कर रहे हैं, रोल्फिया सर्पेंटाइना की बात कर रहे हैं। सर्पेंटाइना, दिस इज biggest flower plant that is arises from this plant that is known as the chemical is रेजर पाइन। और रेजर पाइन से हम क्या निकालते हैं, इस रोजर पाइन से इसकी बहुत सारे वैरायटीज देखने को मिलती है और ये हिमालयन रीजन्स पे अलग अलग जगहों पे मिलेगी। रोजर पाइन जो हिमालयन रीजन्स है उस हिमालय रीजन्स पे अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगी, अलग अलग इसके स्ट्रेन्स देखने को मिलेगी, अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलेगी। और उस रोजर पाइन केमिकल एनालिसिस करते हैं या केमिकल हम सिंथेसिस करते हैं, उस केमिकल का यूज होता है बीपी को कम करने के लिए। उस दवा का यूज यानी उससे जो मेडिसिन बनती है वो बीपी जैसे ब्लड प्रेशर किसी को होता है उसको कम किया जाता है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि रोजर पाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल एराइजेस फ्रॉम रोल्फिया सर्पेंटाइना, जो बीपी में बिल्कुल मेंटेन करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो बीपी, हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उस बीपी को मेंटेन करने का काम इसका होता है। अगर मैं स्पीसीज बायोडायवर्सिटी की बात करता हूं, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर टुडे, दैट इज स्पीसीज लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। आप सब लोगों को पता है, यू नो दैट अबाउट द वेरी वेल, दैट इज स्पीसीज लेवल। स्पीसीज का मतलब है जाति, और जाति का मतलब यहां पर हम इंडिविजुअल ऐसे जाति की बात नहीं करेंगे कि उसमें हमने बात कर लिया इसका। आपने देखा होगा कुछ ऐसी जातियां हैं जो कुछ जगहों पे ज्यादा मात्रा में, कुछ जगहों पे कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, मैं आगे चर्चा भी किया था, आपको शायद बताया भी था कल प्रीवियस डेज पे। मैंने एनसीईआरटी के दौरान, एनसीईआरटी रीडिंग के दौरान मैंने बहुत सारी लाइन टू लाइन में चीजें ऑब्जर्व भी कराई थी और आप लोगों को रीड भी कराया था, और साथ में मैंने बताया भी था किस तरह से स्पीसीज लेवल बायोडायवर्सिटी पे जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं। मैं ये एक इक्वेटर की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर इक्वेटर की बात करता हूं और इस इक्वेटर से मैं पोल की ओर अगर जाता हूं तो चूंकि यहां पे 23/1/2 नॉर्थ डिग्री होता है और यहाँ 23/1/2 साउथ डिग्री पोल होता है। अगर मैं इधर की बात करूं या मैं इधर की बात करूं तो बोथ आर साइड, दैट इज मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये पोल है, और जब मैं इस जगह से मैं इक्वेटर से, ये इक्वेटर है, दिस इज नोन एज द इक्वेटर, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ग्रासलैंड है, या बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ से पोल की तरफ जाता हूं और पोल की तरफ स्पीसीज कम मिलेगी क्योंकि यहां पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और जैसे मैं इस रीजन्स पे आता हूं यहां पर बहुत सारी जातियां मिलती हैं। मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। मैं अगर यहां पर देखता हूं तो ट्रॉपिकल रीजन्स में संख्या 41 से 50 के बीच ही रह जाती है, जबकि यहां 105 या 1400, यहां पर बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 1200 से भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जातियां घटती हैं, इसलिए स्पीसीज लेवल पर भी बायोडायवर्सिटी
देखने को मिलती है। मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा भी, लेकिन पहले आपको यह समझना है कि स्पीशीज लेवल पर किस तरह से चीजें घटती और बढ़ती है। मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं। इकोसिस्टम में हम सब लोग जानते हैं कि दो चीजें आती हैं। अगर मैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करूं तो यह देखा गया है कि वेस्टर्न घाट में जो जातियां हैं ना वो थोड़ा सा कम है ईस्टर्न की अपेक्षा। तो ईस्टर्न घाट पे बहुत सारी जातियां हैं सेम स्पीशीज की, क्योंकि जैसे मैं वेस्टर्न घाट की बात करता हूं वहां पर एम्फीबियंस की संख्या कम हो जाती है, जबकि ईस्टर्न घाट पे वही एम्फीबियंस की संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी भी एट अपने लेवल पे कहीं ना कहीं वो डिफरेंट है इन सारी चीजों से। तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि मैं कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी में जो 3 प्रकार की टाइप्स आप देखने को मिलते हैं, चाहे वो जेनेटिक डायवर्सिटी हो, चाहे वो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी हो, वो चाहे इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी हो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको अब राइट करना है और उसके बारे में आगे चर्चा फिर करते हैं। थैंक यू। हो गया कितने